Welcome to SLD online class 7th standard general science. This video I am going to explain you the measurement of physical quantity. हम आज के वीडियो में मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग क्वांटिटी जानते हैं कि हम डेली अपने लाइफ में क्या क्या वेट कर रहे हैं क्या नहीं. सो Physical quantity. In day-to-day life, we measure many things such as the weight of fruits, vegetable, food grain, temperature of a body or some liquid, volume of liquid, density of various substance, the speed of vehicles, etc. Quantities such as mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called physical quantity. What is physical quantity? The mass, the weight, the distance and the speed, temperature and volume. All these are called a physical quantity. We see what is the mass. We see what is the vegetable of the fruits. We see what is the distance that we are traveling and how much speed we are taking. What is the temperature? The humidity we see. What is today's temperature? What is our body temperature? And what is the volume? All these are called फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जैसे मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो हम मेजर करते हैं हर एक चीज का. जैसे अभी फ्रूट्स का हम लोग वेट देखेंगे, वेजिटेबल्स का वेट देखेंगे, हाँ कितना किलो है, और टेम्परेचर देखेंगे अपने बॉडी का, लिक्विड देखेंगे, लिक्विड का देखेंगे, वॉल्यूम का टेम्परेचर देखेंगे, हाँ कितना है, डेंसिटी देखते हैं हम लोग, कितना डेंसिटी है, कितना वॉल्यूम है, कितना स्पीड है, कितना व्हीकल का स्पीड है, कौन से स्पीड में वो चल रहा है, और वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने स्पीड में उसने गया, कितना स्पीड लिया, यही फिजिकल क्वांटिटी है. A value and a unit are used to express the magnitude of a physical quantity. For example, Swarali walks 2 kilometer every day. In this example, 2 is the value and the kilometer is the unit. What they have given? One girl, she is walking 2 kilometer every day. She walks every day 2 kilometer, and the 2 is there ना, the 2 is the volume, value is the 2. value क्या है? 2 value है और किलोमीटर जो है यूनिट में है. यूनिट में जो है वो किलोमीटर है. किलोमीटर जो यूनिट है जो एक्सप्रेस कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस का. नाउ सी दे हैव गिवन 2 quantity. One is scalar quantity and one is vector quantity. First we will learn about the scalar quantity. A quantity that can be completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity. For example, one magnitude that is only a magnitude. For example, they have taken only magnitude, that is a value with a unit is used to express quantity. Such a length, breadth, area, mass, temperature, density, time, work, etc. Thus we say that the length of the tunnel is 2 kilometer. The fever temperature is 101 degree Fahrenheit, etc. What is the scalar quantity? The quantity that is completely expressed by a magnitude. जो मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली एक्सप्रेस किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. जैसे अभी हम कितना लेंथ कितना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हो, वो कैसे हम कितना है, एरिया का मेजरमेंट कितना है, मास देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, हमारे बॉडी देखो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ कोई भी चीज का वो ट्यूनल से मेजर किया जाता है. जैसे 2 किलोमीटर हुआ. और फीवर हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर जो है वो है थर्मोमीटर से मेजर देखते हैं. तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी हुआ. नाउ वेक्टर क्वांटिटी. द क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस कंप्लीटली ओनली व्हेन magnitude and direction are
both given is called a vector quantity. What is the vector quantity? That it is expressed by the completely, it is expressed by the magnitude and the direction. जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से एक्सप्रेस हो रहा है उसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, displacement of 20 kilometer towards the north, the aeroplane flying at the velocity of 500 kilometer per hour towards Mumbai. What? The displacement and the volume are the vector quantity. Displacement और जो volume है, velocity है, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. वॉल्यूम नहीं, सॉरी, वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. अभी एक एग्जांपल दे है गिवन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ. 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, 20 किलोमीटर नॉर्थ के साइड में. द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. वो नॉर्थ के साइड फ्लाई हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर. क्या फ्लाई हो रहा है? एरोप्लेन. और उसका वेलोसिटी क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर. एक आवर में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है मुंबई के साइड में. तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया. डिस्प्लेसमेंट क्या है? 20 किलोमीटर है और वेलोसिटी क्या है? 500 किलोमीटर पर आवर है. तो ये क्या हुआ? जहां पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिया रहेगा वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों रहता है. वो एक्सप्रेस करता है क्वांटिटी को, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. अब मास ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास. Matter has a natural tendency to resist a change in its state. This is called inertia. What is the mass? Mass is the amount of matter. जो matter कितना substance में present है उसको mass कहते हैं. और जो matter that natural tendency है resist करने का state change करता है ना, उसको inertia कहते हैं. Mass is the qualitative measures of the inertia of an object. The larger the mass, the greater is the inertia. Mass is the scalar quantity. What? Mass is the qualitative measure है inertia का. वो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन उसका मास क्या है? क्वालिटेटिव मेजर रहेगा. तो लार्जर मास द ग्रेटर इज द inertia. जितना मास रहेगा उतना इनिटिया रहेगा. सो मास इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी. इसीलिए मास को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है. इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. व्हाट? इट डज नॉट चेंज. यू टेक द मास एनीवेयर बट इट विल नॉट चेंज इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट. इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस. वो चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है. The quantitative mass and weight are however different. Gram and kilogram are the unit of mass. What? The quantitative mass and the weight are, however, it differs, okay, in a gram or in a kilogram as the unit of a mass. अभी आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे, ग्राम में खरीदोगे 1 किलो 500 ग्राम, तो उसका क्वांटिटी और मास क्या है? वेट उसका डिफरेंट होता रहता है. When we use the two pan common balance in a shop, we compare two masses. What? When we are using the two pan in a common balance in a shop, we compare it as a two masses. ये मास के बारे में था. अभी हम वेट के बारे में पढ़ेंगे. वेट. What is the measure in a gram? What is the measure in a grams? Kilograms is the mass and not weight. The gravitational force that acts on its mass is called its weight. What? The measure in grams and kilogram
इज मास नॉट अ वेट। जो मेजर हम लोग लेते हैं ग्राम या किलोग्राम में, उसको मास कहते हैं पर वेट नहीं कहते। जो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट मास इज कॉल्ड इट्स वेट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है मास के ऊपर, उसे हम वेट कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर is called the weight of an object. Therefore, weight is a vector quantity. It is a difference at different place on the earth. What? The gravitational that is which attack to the earth towards the earth object towards the earth in a center, उसको that is called as a weight of an object. कोई भी object अभी देखो, if for example if you throw the ball up, but earth has the gravitational pull, it pulls the ball towards its side so that it falls on the earth. क्या कोई भी ग्रेविटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो उसको अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ होता है, तो इसीलिए वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और हर एक जगह पे आप कोई भी जगह पे लेके जाओगे, उसका डिफरेंस और डिफरेंट रहता है प्लेस टू प्लेस। कोई भी आप जो दूसरे जगह पे लोगे तो उसका वेट डिफरेंट रहेगा। इट डिफर्स एट द डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटी रहता है वो अर्थ कोई कोई एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहता है, कोई कोई भी कम रहता है, तो वो वेट उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी आपको मालूम पड़ा मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। Now, will it be possible to use one of the same unit to measure physical quantities such as mass, weight, distance, velocity, temperature? क्या पॉसिबल है मेजर करने के लिए कोई भी यूनिट, जैसे फिजिकल क्वांटिटी हुआ मास, वेट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टेम्परेचर, एक ही यूनिट के साथ? उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इन एवरीडे अफेयर्स we measure many different physical quantity as their physical quantity are different from each other. A physical unit is used to measure each quantity. Therefore, different units are used while measuring different quantities. See, they have given, can we measure all the things using the same unit? We cannot measure using the same unit. Why? In everyday life we are measuring many different physical quantity. हम अपने लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं। एज द फिजिकल क्वांटिटी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक यूनिट इज मेजर टू अ मेजर इक्वल क्वांटिटी। तो as the physical quantity are different, what the physical quantity will be different, not same, so they are using a specific unit to measure all the quantity. अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क सब हम लोग लेते हैं, तो ये अलग अलग क्वांटिटी है, फिजिकल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका एक स्पेसिफिक यूनिट है मेजर करने के लिए। हम एक ही यूनिट नहीं यूज कर सकते मेजर करने के लिए। तो इससे हमें मालूम पड़ता है दैट द डिफरेंट यूनिट आर यूज टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटी। इससे हमें मालूम पड़ता है डिफरेंट अलग अलग यूनिट यूज किया जा रहा है हर अलग अलग चीज मेजर करने के लिए। Now, do you know? Our body has the weight because of the gravitational force on the earth. हमारे बॉडी में वेट है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के ऊपर। The gravitational force of the moon being less, our weight will turn out to be less there. Our mass, however, is the same at the both the place. The gravitational pull जो है मून के ऊपर बहुत ही कम है, तो हमारा वेट भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो और मास क्या है, दोनों जगह पे सेम ही रहेगा। वाई वी हैड द वेट इन आवर बॉडी? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ।
So from this we can come to know that our body has the weight because of the gravitational force of the earth. Now standardized measurement. Take a ball of string. Let one student from the class measure 4 handspan of the string and cut its depth. Let each of the other student in a class cut 4 hand spans of the string. 2. Now hold all the pieces towards by one end. Are they of the same length? आप एक स्ट्रिंग लोगे, स्ट्रिंग को फोर हैंड पाम से आप कट करोगे. कट करने के बाद ऐसे 4 स्टूडेंट्स और करना चाहिए. कट करने के बाद आपको मेजर करना है क्या ये सेम है, ये अलग अलग रहेगा. लेंथ क्या रहेगा, सबका हैंड का पाम्स तो सेम नहीं रहता है, तो वो अलग अलग मेजरमेंट आएगा. नाउ Measure the length of the bench by means of the spans of your hand. Ask your friend to do the same. Did each of them obtain the same measure from that bench? What could be the reason? आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2 बहन लोग हो, आप अपने घर पे ही देख सकते हो कि आपके यहाँ टेबल है, तो आप अपने हैंड से मेजर करोगे तो आपको क्या मालूम, आप देखोगे क्या जितना आपकी बहन को बचा, फॉर एग्जाम्पल जितना उनका हुआ क्या उतना ही मेजरमेंट आपका भी है, उतना ही लेंथ है. आप एक करके देखो तो क्या यहाँ अलग अलग रहेगा, क्योंकि सबका हैंड जो है उतनी लंबाई नहीं है कि जितना एक और का रहता है. Required for measuring things. Such measure are called standard unit. Standardized measure it is required to measure the things, so it is called as a standard unit. Standardized measure क्या है, things को measure करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको standard unit कहते हैं. We have to measure many physical units. Actually, to measure any quantity, we use the unit specific for it. What we have to measure many physical units. So we are using a specific unit to measure the quantity. For example, the meter m is the specific unit of the measuring length. What to measure a length we are using a meter. मीटर को मेजर करने के लिए हम लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं, मीटर करके नाम देते हैं. A certain distance has been accepted as the standard for 1.0 meter. Why is there a need for such a standard unit? Suppose the spans of a hand is accepted as the unit for measuring length, which with this unit we can measure the length of the clothes as 2 hand spans, they 3 hand span, and so on. However, the length of the cloth measured by each one of will come out to be different. What happened? We are using to measure a length in a meter. Suppose we accept that the unit of the length we can measure by the hand, which with this unit we can measure the length of the cloth also, the 2 hand span, the 3 hand span, as so on. अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, सपोज हम लोग एक्सेप्ट कर लें कि हम कोई भी चीज अपने हैंड के पैन से मेजर कर सकते हैं. अगर हम मेजर करते हैं कोई भी लेंथ अपने पैन से, तो उसका क्या होगा, मेजर करते वक्त कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम क्लोथ को मेजर करें, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन, वहाँ सो ऑन और आगे. However, the length of the cloth measured by each one of us will become out to be different. When we are measuring with the hand span, the length of the cloth will differs. डिफरेंट रहेगा. वहाँ क्या होता है, अगर हम हैंड के स्पैन से मेजर करते हैं तो वहाँ पे जब हम मेजर करते हैं तो उसका हर एक क्लोथ का मेजरमेंट डिफरेंट आएगा. दैट इज वाई हैंड स्पैन कैन नॉट बी
a standard unit for measuring the length. So this hand span cannot be used to measure the standard unit of the length. हम length measuring का length को हम ये hand span नहीं use कर सकते हैं. तो इसमें अगर हम लोग ये use करेंगे तो वहाँ पे wrong आएगा. ऑलवेज रिमेंबर प्रिविलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. अभी हम प्रिविलिंग सिस्टम पढ़ेंगे. MKS सिस्टम. इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द मीटर, मास इन द किलोग्राम एंड टाइम इन अ सेकेंड. वी नो दैट वी मेजर डिस्टेंस इन अ मीटर. कोई भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, और मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं. और किसके? MKS सिस्टम से. और CGS सिस्टम से. इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन अ ग्राम एंड टाइम इन अ सेकेंड. सो CGS सिस्टम में, इन दिस सिस्टम दे आर मेजरिंग द डिस्टेंस इन अ सेंटीमीटर, मास इन अ ग्राम एंड टाइम इन अ सेकेंड. सी, यहाँ पे MKS सिस्टम में हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस को सेंटीमीटर. CGS में डिस्टेंस को मीटर में, और MKS में मास किलोग्राम में, और यहाँ पे मास ग्राम में, और टाइम सेकेंड में. दोनों में टाइम सेकेंड में ही मेजर हो रहा है. इन द MKS सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, डिस्टेंस, mass and time are accepted as the fundamental quantities. These three quantities are used to measure all other quantity. So, see, in MKS system, the measurement of the distance, mass, that is known as that they are accepted as a फंडामेंटल क्वांटिटी. जो यहाँ पे MKS सिस्टम मेजरमेंट हो रहा है, जैसे डिस्टेंस और मास और टाइम जो मेजरमेंट हो रहा है, उसको एक फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सेप्ट किया गया है, और इसको पूरे क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज अदर जो दूसरा भी क्वांटिटीज रहते हैं ना, उसको मेजर करने के लिए ये यूज किया जा रहा है. तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है MKS और CGS में? MKS में डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस को सेंटीमीटर में. वहाँ पे मास किलोग्राम में, और यहाँ पे ग्राम में, और टाइम को दोनों में सेकेंड में मेजर करते हैं. There are many physical quantities, but a majority of them are related to each other. For example, we have learned that the quantity speed is the ratio of the quantity distance and time. There are many quantities, but a majority of them are related to each other. For example, we can take a speed. The quantity of the speed is the ratio of the quantity of distance and time. अभी हम लोग क्या, क्वांटिटी जो है बहुत सारे है, फिजिकल क्वांटिटी मेजॉरिटी में है, और ये एक दूसरे को रिलेटेड है. तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. स्पीड का क्वांटिटी क्या है? स्पीड का क्वांटिटी और रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम है. वो एक रेशियो है डिस्टेंस और टाइम का स्पीड. सो हियर आई फिनिश माई हाफ ऑफ द चैप्टर. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू here I complete my half of the explanation of the chapter. In my next video I am going to continue my explanation about fundamental quantity, international system of unit. All this in my next video I am going to explain you.